Hello friends, welcome back to the Finance Scholar. So as I promised you, I am back with another series that is on IABF Digital Banking Certification Exam. So today we are discussing Module A Digital Banking Products, and under this Module A, Unit 1 is Digital Delivery Channel. On this video, we will cover Introduction in Digital Banking, Need for Digital Channels, Customer Preference for Digital Banking, customer digital interface for digital banking products, technology, the foundation of user friendliness and customer interaction, security is the cornerstones of digital banking, information security, ombudsman scheme, customer protection, limited liability of customers, and RBI master direction on digital payments, challenges in digital banking, and the last one is EKYC. So, friends, I hope you people are with us, and I hope you are liking our videos. So, we are trying to give you a best possible material that is available for you to crack the exam. And one more thing I want to tell you that, as per my observation, of all the IABF certification, this digital banking certification is one of the easiest certification exam that you can crack very easily by following our videos. And also, if you want a PDF, you can go to the IABF site. There they have separately provided the ebook for IABF certification. So friends, अभी start करते हैं. So first topic है, that is introduction to digital banking. So friends, what is digital banking? Digital banking is like computer based जो भी technologies हैं, those are used to deliver the banking services electronically. मतलब जो भी आज के customers हैं, उनको हम कैसे bricks and mortar banking से हट के everything we can provide them using technology, that is called digital banking. And it covers what? Through internet, if you are providing through mobiles, ATMs, card, UPI, POS, these all are nothing but a kind of the digital banking, RTGS, NEFT, IMPS, wallets, like in these days, na Paytm wallets, phone pay wallets, these all are the digital banking products only. So what is the goal? The main goal is to how to provide convenience to the user or a public, and speed up the business operations, security and customer centric services. So these are the main goals. So now if we talk about ki why digital banking. So the customer demand is like anytime anywhere banking. So nowadays we cannot only depend on the bricks and mortar banking. So to any time, that is 24 into 7, 365 days, what kind of banking that we can provide? So that is a digital banking, that anytime and anywhere. And also the cashless transactions, instant transfer, self-service banking. These are all those needs. Therefore, to fulfill those needs, the digital banking is needed. So today's competitive banking environment, if any bank or any financial institution that needs to survive, they have to be a very, very, very pioneer in digital banking and digital banking products. So if we talk about the alternative delivery channels, so what are the alternative delivery channels? ATMs, debit card, prepaid card, POS terminals, internet banking and mobile banking, digital wallets. So move on to the next page, friends. Next is the features and benefit. If we talk about the features, so the instant money transfer होता है आपका, like RTGS है, for above 2 lakh you can transfer through real time gross settlement. नेफ्ट है, नेफ्ट में आपका बैच में ट्रांसफर होता है, हाफ आवर के बैच होते हैं. एंड IMPS, instant money transfer, unified payment interface. Okay, so these are all the benefits or features. Next is online account services like statement generation, deposits, trading. Almost all of the banks mobile apps, you can find out these services through their mobile apps only. Okay, and banks data analysts, like how these benefits
to provide the customer, they need to analyze the data provided by some of the maybe third party, or they are also analyzing the data using the vendor softwares. So what they are analyzing, they are analyzing how to provide the personalized offer to the customer, how to provide reminder related to different kind of products, or maybe a kind of EMIs, or maybe a kind of rewards point. Okay, and investment advice also. So it can save the time, cost, and eliminates the need of the branch visit. So that if a customer is anywhere, he can instead of visiting the branch, they can they use or access most of the banking service through only digital mode. Next is the paperless, means the use of the paper is very less. So it's also a kind of a eco-friendly. Next, if we talk about evolution, डिजिटल बैंकिंग का एवोल्यूशन जो इंडिया में है, तो फर्स्टली इफ यू टॉक टू द ओल्ड बैंकर्स, दे विल टेल यू हाउ दे वर यूजिंग मैनुअल लेजर्स. So okay, so in manual ledgers they need to maintain everything in manual basis. Then they shift to the advanced ledger posting machine that was called as a ALPMs. Then after that, after I think 2008, that was migrated to the core banking solutions. So presently we are working on the system that is based on the CBS. So CBS, what is the benefit of CBS? So CBS actually provide you a single window access across multiple channel. ATM, branch, mobile, internet, everything will be handled by a single window. It doesn't previously we have to, if we want to access ATM in a, like you don't have to separately go for another software, and for branch another software, for mobile another software. Everything is linked with the with a common program that is called CBS. Next is an analytic drive and customer centric digital banking. These all are the evolution that step by step in digital banking. So if we talk about the key takeaways, so digital banking is not only about the technology but improving a customer service. If like you are adopting technology but a customer experience is poor, then उसका कोई भी फायदा नहीं है. So with the adoption of the digital banking, customer experience should also be improved. So our main aim should be like that. And future banking, that is paperless, seamless, intelligent, and customer focused. So sometimes they may give you a 4 or 5 options, and they may ask what are the what is not the feature of the future banking. So maybe you have to eliminate one of those options. So friends, I hope you people are liking this video, and please like, share, and subscribe the channel. And moving on the next page, need for the digital channel. So if we talk about what is the need of the digital channel, so first and most important need is what is our India's economic background. Okay, so if you are taking only India's perspective, not global perspective, actually India's perspective is also linked with the global perspective only. So firstly, global adopted world adopted the digital banking, then we also a part of that journey only. So sixth largest economy by the nominal GDP. If we talk about the nominal GDP, but if I tell you the current situation, we are at a fifth position, and our aim is to by 2027 or 28 we will be a third largest economy of the world by GDP. So if we talk about purchase power parity, we are third in the world, and we also are a member of G20 and BRICS. So these all are the to achieve and to sustain on these things, the need of digital channel is very much important. So demand of the digital payment service expected to rise with the growth. Okay, so if we talk about the population versus banking infrastructure, so if actually as per the latest what is provided in the book of the that recently edition, they have given a data till 2018. So till 2018, population was 1354 million. Of that, this is a scenario, and in the same way, like in a percentage of the same way, the services are also increasing. So bank branches की अगर बात करें तो 1.49 lakh branches थी, and one branch is equal to 9,700 customer.
एंड एटीएम की बात करें तो टोटल 2.6 lakhs एटीएम्स थे. सो दैट एटीएम, अगर एक एटीएम की बात करें तो दैट शुड सर्विस एटलीस्ट 6,500 people. So actually it was very difficult. So actually इसको स्केल करना इट वाज वेरी हैवी, प्रेशरेबल एंड बहुत टफ था. तो क्या हुआ, डिजिटल बैंकिंग को अडॉप्ट करने से most of the public, those were visiting to the branches, they are like young generation or the servicemen or the business class ones shifted to the this digital services. So also the pressure on the branches and the pressure on the ATMs also decreases, and the service quality and the speed is also increased. So earlier the transaction was very less. Now daily billions of the transaction are going on. Next, move on to the cost of transaction. So if we compare branch transaction cost and digital transaction cost, so obviously branch transaction cost was very high. So now if we talk about the ATM transaction cost, it was comparatively low to the branch transaction. और अगर हम बात करें ई कॉमर्स या मोबाइल बैंकिंग में, तो वो एटीएम से भी कम, यानी हमारे पास चीपेस्ट ऑप्शन इज डिजिटल बैंकिंग. सो ऑब्वियसली इफ the cost will be cheaper, expenditure will be cheaper, so ultimately the profit will goes up and we will be able to provide a better services. Next is point of sales terminals. So point of sales terminals, POS जिनको बोलते हैं, sometimes इनका full form भी आ जाता है. So those are links to the bank. Most of the merchants are using these POS machines. So if we talk about the data till July 19, 42.5 lakhs POS machine were present at that time. So now it's a very high penetration. Okay, compared to still compared to the population size, it is very less. So the growth potential is very high. तो अभी भी जो है पॉपुलेशन के हिसाब से पॉश टर्मिनल का ग्रोथ बहुत ज्यादा है, उनको हम और भी स्केल अप कर सकते हैं. अब बेनिफिट ऑफ डिजिटल चैनल की बात करें तो पहली चीज तो बताया कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी. फिर जो कन्वीनियंस है कस्टमर का, वो भी अच्छा हो जाएगा और सर्विस भी उसको फास्ट मिलेगी. और कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर बढ़ेगा तो लॉयल्टी भी रहेगी कस्टमर की. कस्टमर जल्दी से दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या बैंक में स्विच नहीं करेगा. और जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी बैंक्स की, वो भी लॉन्ग टर्म रहेगी, क्योंकि जब उनका एक्सपेंडिचर कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो उनके पास कैपिटल भी होगा अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए. मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे. फ्रेंड्स, जो भी लोग केवाईसी एमएल या फिर एमएसएमई का सर्टिफिकेशन एग्जाम दे रहे हैं, उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, उसको जाके आप विजिट कर सकते हैं. बहुत से लोगों ने उसको विजिट किया है, उसको पढ़ा है, उसके पढ़ने से उनका एग्जाम भी क्रैक हुआ है. दे सम ऑफ देम आल्सो कमेंटेड. तो आई सजेस्ट यू, इफ यू आर गिविंग द एग्जाम, एटलीस्ट एक बार आप वो वीडियोस देखें, वो आपको हेल्प करेंगे. कस्टमर डिजिटल इंटरफेस फॉर डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला है कि शिफ्ट टुवर्ड्स डिजिटल बैंकिंग. तो डिजिटल बैंकिंग जो है वो ट्रेडिशनल जो ब्रांच बैंकिंग थी, जैसा कि मैं पहले भी बताया, उसको जो है एक तरह से ओवरटेक कर लिया है. ठीक है, अब क्या है कि जितने ट्रांजेक्शन आपके ब्रांच बैंकिंग से होते हैं, उसके कई गुना ट्रांजेक्शन आपके डिजिटल बैंकिंग के थ्रू होते हैं. ठीक है, तो जो भी बैंक्स, जो भी रिस्क होता है उसको अगर अडॉप्ट करने में फेल हो जाते हैं, तो वो कस्टमर को लूज कर देते हैं. ठीक है, और कस्टमर क्या है आज के टाइम पे एक्स्ट्रा पे करने को तैयार है, अगर उसको आप वैल्यू एडेड डिजिटल सर्विसेज दे रहे हो. आपके बैंक का मोबाइल ऐप है, ई वैलेट है, लॉयल्टी पॉइंट्स हैं, है ना, ये सारी चीज, इंस्टेंट नोटिफिकेशन, सबके लिए अगर आप उसको कुछ माइनर से चार्जेस भी लगाओगे, तो कस्टमर आर रेडी टू पे. सेकेंड है सर्वे इनसाइट. ठीक है, तो अगर हम पीडब्ल्यूसी जो डिजिटल टिपिंग पॉइंट सर्वे था 2011 का, उसको लें, तो जो कि मिलेनियम जो होता है, मिलेनियम की अगर बात करें फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो भी जनरेशंस है हमारी, उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से डिवाइड किया गया, डिपेंडिंग ऑन देयर पीरियड. तो जो अगर हम जेन वाई की बात करें, अभी मैं पीरियड वाइज भी आपको आगे बताऊंगा कि कौन से जनरेशन का कौन सा पीरियड है. ठीक है, तो जेन वाई की बात करें, जेन वाई को हम लोग बोलते हैं मिलेनियल्स. ठीक है, तो ये क्या है, मोबाइल ये लोग 66.8% यूज करते हैं, ऑनलाइन 87.8% इनका ट्रांजेक्शन रहता है. अगर जेन एक्स की बात करें तो वो थोड़ा पुरानी जनरेशन है, वहां पे 59.5 और ऑनलाइन 92.3%. बेबी बूमर्स की बात करें
तो बेबी बूमर्स जो है वहां पे मोबाइल 39.9 और ऑनलाइन 90.6%। मेच्योर या एल्डरली की बात करें तो वहां पे मोबाइल और कम हो जाता है 26.3%, ऑनलाइन 85.4%। तो यंगर जनरेशन जो भी होती है वो मोबाइल को प्रेफर कर रही है, और ओल्डर जनरेशन जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग जो है यानी कि इंटरनेट बैंकिंग हो गई आपकी, है ना, इन सबको ज्यादा यूज कर रही है। आगे मूव करते हैं, ड्राइवर्स ऑफ डिजिटल बैंकिंग एडॉप्शंस। तो डिजिटल बैंकिंग एडॉप्शन के जो ड्राइवर्स हैं उनकी बात करें तो एक तो जो यूआई है, यूजर इंटरफेस, उसको इंटरेक्टिव बनाना, है ना, रियल टाइम बनाना, ताकि उसको एक्सेस करना यूजर्स के लिए इजी रहे, तो उसका यूएक्स एंड यूआई इंप्रूवमेंट, ठीक है। और एनीवेयर इंटरनेट सर्विस, मोबाइल ड्राइवन कन्वीनियंस होना चाहिए कि कहीं भी वो मोबाइल से अगर ट्रांजेक्शन को करना है या इंटरनेट के थ्रू करना है तो उसको वहां पे इंटरनेट का एक्सेस हो, क्योंकि अगर इंटरनेट का एक्सेस नहीं है तो फिर वो मोबाइल ऐप का करेगा भी क्या या इंटरनेट बैंकिंग का करेगा भी क्या। तो उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया। अभी शायद ही कुछ जगह हैं जहां पे आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी ना मिले, नहीं तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू कैन गेट इंटरनेट इजिली। फिर एनालिटिकल टूल्स की बात करें तो कस्टमर प्रोफाइलिंग, है ना, और पर्सनलाइज्ड ऑफर, ये सब कैसे प्रोवाइड करने हैं, कस्टमर की प्रोफाइलिंग कैसे करनी है, इन सब के लिए एनालिटिकल टूल होते हैं। उन सारे टूल्स का यूज करते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ताकि वो बेस्ट से बेस्ट ऑफर्स प्रोवाइड कर सकें कस्टमर को, और उनकी प्रोफाइल का 360 डिग्री व्यू ले सकें कि क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, क्या उसका प्रोफाइल है, उन सारी चीजों से रिलेटेड ही वो बेस्ट प्रोडक्ट भी डिजाइन कर सके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। फिर एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक का यूज करें, जैसे कि अभी क्या है, हम एक नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। मैक्सिमम बैंक्स जो है वो एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे वो मॉनिटरिंग की बात हो, चाहे वो ट्रांजेक्शन की बात हो, बहुत ही तेजी के साथ एआई जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है बैंक्स में, और बैंक्स उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि इफ यू वांट टू सस्टेन इन अ कंपेटिबल कम्पिटिटिव मार्केट तो एआई आपको लाना ही पड़ेगा। बिना एआई के, मतलब अगर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एआई को अडॉप्ट करने के बारे ना करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप एंड रिटेंशन। तो इसकी बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने कस्टमर के साथ कैसे बिजनेस रिलेशनशिप और बैंकिंग रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। अब इलर्निंग कस्टमर जो होते हैं उनकी लॉयल्टी जो होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। तो अगर आपने एक बार उनको, वो आपसे जुड़े हुए हैं आपके बैंक से, और आप उनको एक सेटिस्फैक्टरी सर्विस दे रहे हैं, तो वो किसी भी बैंक में नहीं जाने वाले स्विच करके। जबकि यंगर की बात करें तो वो लेस लॉयल होते हैं। उनका क्या है कि अगर जरा भी उनको लगा कि यार ये चीज गड़बड़ हो रहा है, या यहाँ इसका मोबाइल ऐप सही नहीं चल रहा है ना, या इंटरनेट बैंकिंग तो इनकी पड़ी रहती है, यार इनके एटीएम में तो पैसे ही नहीं रहते, तो क्या करते हैं ना, एक यंगर जनरेशन का चूंकि रील्स एंड ऑल ये सब ना, क्विक उनको चाहिए रिजल्ट, तो वो क्या है, वो बहुत जल्दी स्विच करते हैं इस बैंक से उस बैंक में, है ना, ऐसे। तो ये सारे क्या है, चैलेंजेस है बैंक के लिए कि कैसे वो यंग कस्टमर को, ये जो हाईली कम्पिटिटिव डिजिटल मार्केट है उसमें कैसे रिटेन करें उनको। अब बात करते हैं जनरेशनल कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। तो जो हमारे बेबी ब्यूमर्स हैं, बेबी ब्यूमर्स जनरेशन हम बोलते हैं, जो 1946 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो जनरेशन है 1964 तक, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेबी बूमर्स। ये इनका मेन जो था, ये ट्रेडिशनल बैंकिंग की तरफ ज्यादा झुकाव है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मिलेनियल्स, जिसको बोलते हैं जेन वाई, ठीक है। ये जनरेशन आती है, बहुत ज्यादा टेक सेवी है, ठीक है। 1964 से 1982 के बीच का इनका रहता है, और इनका मेन है ये मोबाइल और इंटरनेट ज्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन विजिटिंग द ब्रांच। अब बात करते हैं कि एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस प्रकार से है। तो इंडियन डेमोग्राफी की बात करें अगर, तो 0 से 14% एज के जो लोग हैं 2018 के डेटा के अनुसार जो है उनका 28.8% है। 15 टू 24 18.4 है। 25 टू 54 39.9 है, ठीक है। तो ये 39.9% एक पूरा कोर वर्किंग एंड अर्निंग क्लास है, ठीक है। 55 से 65% 64 एज के जो है वो 7.3% है, एंड अबव 65 जो है वो 5.5% है। अब जो ये मेन ग्रुप है जो कि है
25 से 40 ईयर एज वाला ग्रुप, ये है आपका डिजिटली ड्राइवन ग्रुप। यही मैक्सिमम जो है डिजिटल बैंकिंग या डिजिटल रिलेटेड चीजों को यूज करता है। ठीक है, तो अगर हम की टेकअवे देखें तो यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग जो है उसको कस्टमर इंटेलिजेंटली यूज कर रहा है फॉर कन्वीनियंस एंड स्पीड के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है डिजिटल बैंकिंग से। तो जैसे कि कस्टमर्स की डिमांड जो है वो चेंज होती रहती है। कस्टमर क्या है, अभी उसको चाहिए हाई क्वालिटी डिजिटल कम्युनिकेशन होना चाहिए, मॉडर्न पेज डिजाइन होना चाहिए, यूआई जो है बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। मतलब ऐप का जो डिजाइन है, उसका जो यूआई है, कि उसमें कोई भी चीज ढूंढना है तो इतना टफ ना हो कि वो पता चले पेमेंट कहाँ से करना है, ट्रांसफर कहाँ से करना है, वही नहीं ढूंढ पा रहा है कस्टमर, है ना। और फंक्शनैलिटी जो होनी चाहिए वो रिच होनी चाहिए, मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए, फास्ट रिजल्ट होना चाहिए, है ना। फीचर्स भी इंटरेक्टिव होने चाहिए, उसी में म्यूचुअल फंड भी दे दिया, उसी में आपका इंश्योरेंस का भी ऑप्शन दे दिया, वहीं पे सुकन्या समृद्धि भी दे दिया, पीपीएफ का भी ऑप्शन दे दिया, क्रेडिट कार्ड का सारा डिटेल वहीं से वो मिल जाएगा, स्टेटमेंट वहीं से, पासबुक वहीं से, ये सारी चीजें। और ये अकाउंट स्टेटमेंट जनरेशन 24/7, तो ये सारी चीजें। अब बात करते हैं पावर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सोशल मीडिया। तो पावर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सोशल मीडिया की बात करें तो देखो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सारे जो भी सोशल मीडिया है, यूट्यूब, इन सब के थ्रू क्या है, अभी जो बैंक्स है वो अपना एडवर्टाइजमेंट इनके थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यंग जनरेशन जो है इनमें ज्यादा एंगेज रहता है, तो वहां पे एक अपने ब्रांड का अच्छा रेपुटेशन बनाना वो बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी बैड एक्सपीरियंस मिला तो वो बैंक का रेपुटेशन डैमेज कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। कस्टमर ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस की बात करें तो कस्टमर जो होता है वो हमेशा ये सोचता है कि उसको पैसा जहां रखना है वहां पे उसको ट्रस्ट होना चाहिए। तो कस्टमर जो होता है वो ट्रस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करता है ना। जहां ट्रस्ट नहीं हो, पैसा नहीं रखता। ठीक है, अभी भी बहुत से लोग हैं जो गवर्नमेंट बैंक्स में सिर्फ इसलिए पैसा रखते हैं क्योंकि उनको उनको ट्रस्ट है कि नहीं, ये बैंक गवर्नमेंट का है ना। भले ही उसमें थोड़ा बहुत सर्विस में लैग भी होगा प्राइवेट बैंक से, फिर भी बहुत से लोग हैं, खासकर जो बेबी बूमर्स जनरेशन के हैं, या फिर जो जो आपके जनरेशन वाई हैं, है ना, मिलेनियल, ये सारे अभी भी इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एक भी नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ तो माउथ पब्लिसिटी जो होती है वो बहुत ही खराब होती है। वो बहुत ही, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, उनकी बातें जो है ना वो सोशली बहुत इंपैक्ट करती हैं। एक यंग जनरेशन कोई बात बोलेगा और एक मिलेनियर या फिर बेबी बूमर कोई बात बोलेगा, तो उनकी बात का इंपैक्ट ज्यादा रहता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस लोग रहते हैं। तो इसलिए इन चीजों पे बैंक को बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। की एस्पेक्ट्स की बात करें जो बैंक को कंसीडर करना होता है, तो वो है आपका रैपिडली इवॉल्विंग कस्टमर बिहेवियर। ठीक है, ये सारी चीजें कि कस्टमर का बिहेवियर और एटीट्यूड बहुत ही तेजी से इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, और सबसे पहला प्रेफरेंस हर बैंक का होना चाहिए डिजिटल, डिजिटल फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, और टेक जो है उनको जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कॉन्स्टेंटली उनको टेक एडवांसमेंट लाते रहना चाहिए, और ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करना चाहिए। जैसे कि अभी ईज का एजेंडा भी जो गवर्नमेंट पीएसबी रिफॉर्म्स की जब बात करें तो वो ईज एजेंडा लाए। ईज एजेंडा में अभी जैसे ईज 8.0 चल रहा है, फिर अभी ईज ईज 9.0 भी आएगा। तो उसमें उनका फोकस वही है कि कैसे बैंक को रिफॉर्म्स लाए जाए नए नए, है ना, और कैसे ऑपरेशनल कॉस्ट को कम किया जाए, एक्सपेंडिचर को कम किया जाए, और जो है सर्विसेज क्वालिटी को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है फास्टर सर्विस डिलीवरी चैनल, है ना। टैट डिसाइड किया है कि ये सर्विस प्रोवाइड करनी, लोन कोई दे रहे हो तो उसको कितने टाइम पे वो लोन सैंक्शन हो जाना चाहिए, अकाउंट कितने टाइम पे ओपन हो जाना चाहिए, अगर कोई डिस्प्यूट है एटीएम से रिलेटेड तो कितने टाइम पे सेटल हो जाना चाहिए। तो ये सारा टैट के अंदर आता है। अगर वो नहीं फॉलो करते तो फिर पेनल्टी भी जो रेगुलेटर है वो लगाता है ना। तो कस्टमर कन्वीनियंस फिर आता है। कस्टमर कन्वीनियंस में उनका टाइम बचाना, कॉस्ट, एफर्ट, ये सारी चीजें बचती हैं। फिर रिस्क विद डिजिटलाइजेशन की भी बात करें तो ये भी बैंक को ध्यान में रखना होता है। जैसे अब साइबर सिक्योरिटी है ना, इन सब पे भी बैंक को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। इसलिए साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड पॉलिसी बनती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं बैंक्स के वो अप्रूव करते हैं। हर साल वो पॉलिसी बनती है, उसके अंदर मेंशन रहता है कि कैसे क्या जो है मेजर्स लेने हैं। ठीक है, जैसे साइबर फ्रॉड्स आजकल हो रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड्स, तो उन सब से कैसे निपटना है, क्या क्या प्रिवेंशन मेजर्स लेने हैं, सब उसमें मेंशन रहते हैं, और उसके तहत ही बैंक सारे काम करते हैं। कस्टमर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मस्ट अडॉप्ट टू डिजिटल चैनल नॉट ट्रेडिशनल फॉर्मेट। तो अब कस्टमर को एजुकेट करना है ना, उनको डिजिटल चैनल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट करना, रेदर देन मोटिवेटिंग टूवर्ड्स द ट्रेडिशनल फॉर्मेट।
फ्रेंड्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन आता है फ्रेंड्स। ये सारा लेक्चर फ्री है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो इसको बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है। आपका एक छोटा सा लाइक, छोटा सा शेयर, छोटा सा सब्सक्राइब मोटिवेशन देता है। और आप कमेंट में लिखिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं, क्या आप चाहते हैं कि उसको ऐड किया जाए, क्या टॉपिक और आप चाहते हैं कि उसको कवर किया जाए। तो उस पे भी जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उस टॉपिक पे वर्क करेगी टीम हमारी। आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी द फाउंडेशन ऑफ यूजर फ्रेंडलीनेस एंड कस्टमर इंटरेक्शन। तो बियॉन्ड बेसिक इंटरनेट बैंकिंग अगर हम बात करें तो डिजिटल बैंकिंग क्या है, पूरा 360 डिग्री व्यू देती है किसी भी कस्टमर का। उसका काम यह है कि कस्टमर क्या लेना पसंद करता है, किस तरह की सर्विसेज उसको चाहिए, है ना, क्या चीज वो नहीं चाहता है, ये सारी चीजों का नॉलेज है ना। और कहाँ पे लोन्स का ग्रोथ ज्यादा है, या कहाँ पे ये कह सकते हैं कि कहाँ पे हम लोन्स ज्यादा दे सकते हैं, सारा कैसे पता चलता है। 360 डिग्री भी होना चाहिए, कस्टमर का भी होना चाहिए, मार्केट का भी होना चाहिए, है ना, और रिस्क का भी होना चाहिए। उसी के अंडर आता है केवाईसी, जिसको बोलते हैं नो योर कस्टमर। बहुत सारे लोग चूंकि केवाईसी के बारे में आई नो यू एवरीबॉडी नोज कि केवाईसी तो मस्ट है, मींस हर बैंक में केवाईसी डिपार्टमेंट तो है ही है। और आरबीआई जो है उसका मानना तो ये है कि केवाईसी इज द फाउंडेशन ऑफ द बैंक्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है ना। अगर केवाईसी सही नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ झोल होना ही होना है। तो अभी तो केवाईसी मस्ट है। तो उसका मतलब क्या है केवाईसी का, अंडरस्टैंडिंग द फुल कस्टमर प्रोफाइल एंड देयर प्रेफर्ड वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद द बैंक। अब बात करते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का सीधा मतलब ये है कि कस्टमर के बिहेवियर, उसका प्रेफरेंस क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, इन सब से रिलेटेड डेटा का एक पूरा एनालिटिक्स रहना, उसके उससे रिलेटेड डेटा की माइनिंग करना, फिर उससे जो आउटपुट आता है उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना और उसको उसको लॉन्च करना, ठीक है। तो ये डिजिटल चैनल जो होते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि बैंक और कस्टमर के बीच में एक डीपर रिलेशनशिप क्रिएट बिल्ड हो सके। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर पैटर्न। ये सारे फ्रेंड्स, ये जो भी पॉइंट्स हैं सब टेक्नोलॉजी से क्या क्या चीजें रिलेटेड हैं, जो कि फाउंडेशन है यूजर फ्रेंडलीनेस और कस्टमर इंटरेक्शन की, वो सारे हैं। कस्टमर जो होता है वो बिजनेस चैनल यूज करेगा अलोंग साइड विद अदर एक्टिविटीज। जैसे अब उसको ऑनलाइन शॉपिंग करना है, तब वो क्या करेगा, अपना एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वैप करेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। या फिर यूपीआई पेमेंट करेगा ई कॉमर्स पे जाके। कोई भी चीज करनी है उसको बैंकिंग चैनल का यूज करना ही करना है। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स। अब मूव करते हैं नेक्स्ट में। अब यंग कस्टमर क्या है, यंग कस्टमर तो वही है ना जो सोशल मीडिया पे, अब नॉट ऑन द अदर वे, बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम टाइम यंग यंग यूजर्स जो होते हैं वो यूज अपना स्पेंड करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ठीक है। तो अब वहां पे आपके बैंक का या इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंस कितना ज्यादा है, वही आपकी ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करता है, बिल्ड करता है, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक्स हो, सभी का सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंस आपको मिलेगा, ठीक है। ये इंक्रीज ट्रस्ट को भी इंक्रीज करता है और एक एंगेजमेंट भी बढ़ाता है कि हाँ ये इसका प्रोडक्ट जब वो बार बार देखता है तो उसका एक एंगेजमेंट सा हो जाता है। अब बात करते हैं बैक एंड इसेंशियल की। तो जो कि कोर है डिजिटल बैंकिंग का वो है कस्टमर को अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। और जो सर्विसेज हो वो अलाइंड हो, पर्सनलाइज्ड हो और सिक्योर हो, और जो एक्सपीरियंस हो यूजर का वो बेटर हो, और रिलेशनशिप जो हो वो स्ट्रांग हो। फ्रेंड्स अब बात करते हैं सिक्योरिटी इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ डिजिटल बैंकिंग। अब कॉर्नर स्टोन ऑफ डिजिटल बैंकिंग इसको क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, देखो आपको बता देता हूँ, ये वीडियो होगा लंबा, ठीक है, क्योंकि देखो टॉपिक्स हैं बड़े। तो ये 20-25 मिनट का वीडियो तो नहीं होने वाला है। ये आपका, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी खत्म कर दूं, बट चूंकि सारे टॉपिक्स कवर करने हैं ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। तो आपके आई थिंक 9 यूनिट्स हैं। तो आपके जो 9 वीडियोस होंगे ये प्रॉपरली कवर्ड होंगे, थोड़े बड़े होंगे, तो आप थोड़ा बियर कर लेना। अगर जिसको लगता है कि थोड़ा स्पीड धीमी है तो फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकता है, थोड़ा इंक्रीज अपनी 1.25 में लगा लेना, 1.5 में, अकॉर्डिंग टू योर योर अंडरस्टैंडिंग। बट यार पूरा टॉपिक कवर करना है तो वीडियो तो लंबा हो। तो फ्रेंड्स मूव करते हैं। स्कोप ऑफ सिक्योरिटी की बात करें
तो सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो बैंक का जो हार्डवेयर है, आईटी सिस्टम है, दोनों चीजें सिक्योरिटी में आती है, ठीक है। जैसे पीसी हो गया, मैक हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया, है ना, इन सब की सिक्योरिटी। तो कैसे डिजिटल बैंकिंग का एम है कि कैसे वो इंश्योर करे सेफ कम्युनिकेशन, डेटा को भी प्रोटेक्ट रखे और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उससे रिलेटेड उसको भी सिक्योरिटी रखे, ठीक है। अब बियॉन्ड कंप्लायंस की बात करें तो कभी कभी क्या है, बैंक्स को जाना पड़ता है गो फर्दर देन द रेगुलेटरी रूल्स, है ना। रेगुलेटरी रूल से आगे बढ़ के भी कंप्लायंस करना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि रेगुलेटर ने बोला है तो उसी के लिए कंप्लायंस कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सिक्योरिटी जो है वो आपके बिजनेस इंटरेस्ट से लिंक होना चाहिए, ना कि सिर्फ कंप्लायंस से। अगर कंप्लायंस से लिंक रहेगा तो आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आनी है। इसीलिए बैंक्स जो है वो रेगुलेटर का जो गाइडलाइंस होती है उनको तो फॉलो करते हैं, साथ में उनका खुद का भी सिक्योरिटी पॉलिसीज होता है, जिसके थ्रू वो एक एक्स्ट्रा मेजर्स लेते हैं ताकि कोई इशू ना हो। अब बात करते हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस की। तो लिंकिंग सिक्योरिटी विद बिजनेस, तो इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इनटू सर्विस डिजाइन, ऑपरेशन एंड डिलीवरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक चैलेंज है कि कैसे आपको जो है ऑपरेशंस में, है ना, डिलीवरी यानी कि जो भी आप जो भी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो, है ना, उन सारी चीजों में आपकी सर्विस में कैसे आपको सिक्योरिटी भी रहनी चाहिए कि उसमें कोई इशू ना आ जाए। तो ये सारा एक तरह से चैलेंज है, ठीक है। इन्वॉल्व बिजनेस स्टेक होल्डर इन सिक्योरिटी डिस्कशन। आगे मूव करते हैं फ्रेंड। अब बात करते हैं इंटरप्राइज गवर्नेंस। तो इंटरप्राइज गवर्नेंस में आपका आएगा फ्रेमवर्क, है ना। गवर्नेंस में क्या है, फ्रेमवर्क बनाना, पॉलिसी, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी आती, क्या क्या कंट्रोल्स होने चाहिए आईटी एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए, वो सारे इसमें रहते हैं। कीपिंग पेस विथ थ्रेट्स, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट है कीपिंग पेस विथ थ्रेट्स। तो जो भी थ्रेट्स हैं, है ना, उनसे पहले से ही एक इंटेलिजेंस ड्राइवन अप्रोच होना चाहिए कि थ्रेट क्या आने वाला है उसका पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर, प्रोएक्टिव मेजर जो है वो लें। और एक एनालिटिकल एंड एक एनालिटिक होना चाहिए, पार्टनरशिप होना चाहिए जो थर्ड पार्टी स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हैं, वेंडर्स हैं, उनसे, ताकि किसी भी तरह की जो थ्रेट है उसको पहले ही उसको खत्म कर दिया जाए। अब बात करते हैं सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज की। तो जो भी स्टाफ है जो कि काम कर रहा है वो स्किल्ड होना चाहिए, उसको प्रॉपर उसको ट्रेनिंग देना कि सिक्योरिटी की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्या डिजाइन होना चाहिए, एग्जीक्यूट कैसे होना चाहिए, इस चीज की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए स्टाफ को, ठीक है। ताकि एक स्ट्रांग सिक्योरिटी कल्चर जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड हो सके। फ्रेंड कभी कभी क्या होता है, मैक्सिमम जो जो एग्जाम होगा उसमें एक केस स्टडी जैसा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। एक सिनेरियो दे देगा, फिर आपको उससे रिलेटेड जो है एक केस स्टडी दे देगा, फिर उसमें पूछेगा कि इसमें से क्या मेजर आपको लेना है, ठीक है। क्या आप मेजर लोगे अगर आप एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हो, ठीक है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो अगर सिक्योरिटी की बात करें तो वो क्या है, डिजिटल बैंकिंग का फाउंडेशन है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, ये एक तरह से इसमें क्या है, जो कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस होते हैं ना, क्या क्या कंट्रोल्स, क्या क्या मेजर्स लेने हैं बैंक के डिजिटल एसेट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बैंक के फिजिकल एसेट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो क्या क्या ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इट्स गोल इज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, मिसयूज, ऑल्टरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है। इनको ट्रायड भी बोलते हैं, CIA ट्रायड भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है वही उसको जो भी डेटा है एक्सेस कर सके, कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति उसको यूज ना कर सके, जैसे कस्टमर के रिकॉर्ड हो गए, अकाउंट बैलेंस हो गया, तो ये है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। अब बात करते हैं इंटीग्रिटी की। तो इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि जो भी डेटा है वो एक्यूरेट रहे, उसमें कोई ऑल्टरकेशन ना हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपने ट्रांजेक्शन किया और ट्रांजेक्शन करने के बाद कुछ दिखा रहा था और उसको बीच में ही कोई बाद में अल्टर कर दे, ऐसा नहीं। अगर एक बार एक ट्रांजेक्शन हो गया तो उसमें कोई भी ऑल्टरकेशन नहीं हो सकता।
जैसे कि आपके बैलेंस हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए ना, वो एक बार अपडेट हो गए तो हो गए। एवरी चेंज इज लॉग्ड विद डिस्ट्रॉइंग प्रायोरिटी प्रायर इंटेंशन, मतलब अगर आप उसमें कुछ भी चेंज करोगे तो वो भी लॉग्स में आएगा। तो ये क्या होगी आपकी इंटीग्रिटी। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि जो डेटा है वो क्या हो, वो जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उनको जब भी उसकी रिक्वायरमेंट हो तो वो एक्सेसिबल हो। ऐसा नहीं है कि जब कस्टमर जो है मोबाइल ऐप चला रहा है तो वो मोबाइल ऐप चल ही नहीं रहा है ना, जब इंटरनेट एक्सेस कर रहा है तो इंटरनेट बैंकिंग चल ही नहीं रही ना, तो वो अवेलेबिलिटी को हैम्पर करना होगा ना। तो अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए, राइट टाइम, राइट लोकेशन एंड थ्रू प्रॉपर मीडिया। तो ये हो गई आपकी अवेलेबिलिटी। ठीक है। CIA principle applied to information in process, at rest and in transit, तीनों केस में CIA प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए। आगे मूव करते हैं फ्रेंड। अब बात करते हैं थ्रेट्स एंड रिस्क के बारे में। तो एक तो हो गया आपका सॉफ्टवेयर थ्रेट। सॉफ्टवेयर थ्रेट में आपका मालवेयर आ गया ना, सिस्टम पे वायरस, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर के थ्रेट्स हैं। ह्यूमन रिलेटेड थ्रेट्स अगर बात करें तो फिशिंग हो गई, सोशल इंजीनियरिंग हो गई, वीक पासवर्ड, केयरलेस हैंडलिंग ऑफ सेंसिटिव डेटा। ठीक है। ये सारी चीजें अभी बाद में आएंगी नेक्स्ट यूनिट्स में थोड़ा डिटेल्स में। ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क की बात करें तो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया, एक्सीडेंटल डिलीशन, कोई एक्सीडेंटली डिलीट कर दिया, या सिस्टम डाउन टाइम, ये सब क्या है ऑपरेशनल रिस्क। अब बात करते हैं सेफ गार्ड एंड प्रैक्टिसेस की। तो मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। बैंक क्या क्या इंप्लीमेंट करता है, एक तो पॉलिसीज और रूल बनाता है एक्सेस कंट्रोल से रिलेटेड, यूजर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, डेटा क्लासिफिकेशन करता है। यूजर ऑथेंटिकेशन में जैसे आपका हो गया, एक तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो गया कि यूजर आईडी, पासवर्ड, ओटीपी, ये सारा 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, ये सारी चीजें होती हैं। अब सॉफ्टवेयर टूल्स की बात करें तो उसमें आता है फायरवॉल, एंटीवायरस, इंक्रिप्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन, ये सारी चीजें होती हैं ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर ले। प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में आपका बैकअप्स लिए जाते हैं, जैसे डीआर ड्रिल होता है आपका ना, वो सारी चीजें होती हैं। लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग हो गया, रेगुलर ऑडिट्स हो गई, बीच बीच में रेगुलर ऑडिट्स होती रहती हैं, और अवेयरनेस की ट्रेनिंग भी होती है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसका मेन इंपॉर्टेंस है कि कस्टमर का ट्रस्ट और बैंक का रेपुटेशन दोनों को प्रोटेक्ट करता है। कंप्लायंस और रेगुलेटरी जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको इंश्योर करता है, एंड मेंटेन करता है स्टेबिलिटी बैंकिंग ऑपरेशन की, और फाइनेंशियल लॉस को प्रिवेंट करता है। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, RBIOS 2021 तो ये कब लॉन्च हुई थी, ये 12 नवंबर 2021 को लॉन्च हुई थी। ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो 3 डिफरेंट स्कीम थी, है ना, कौन कौन सी, बैंकिंग ऑम्बड्समैन 2006, एनबीएफसी स्कीम, ऑम्बड्समैन स्कीम 2018 एंड ऑम्बड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019, तीनों को मर्ज करके एक स्कीम बना दिया ऑम्बड्समैन का, जिसका नाम है द इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, जिसको वन नेशन वन ऑम्बड्समैन भी बोलते हैं। ठीक है। ताकि कस्टमर जो है वो कंफ्यूज ना हो कि किधर कंप्लेन करना है, पता चला डिजिटल के लिए अलग ऑम्बड्समैन है ना, एनबीएफसी के लिए अलग ऑम्बड्समैन है, तो इसीलिए इसको मर्ज कर दिया। अब इसमें कवर कौन कौन है, जितने भी पब्लिक, प्राइवेट, कोऑपरेटिव, रीजनल रूरल बैंक है, एनबीएफसी है, पेमेंट सर्विस मर्चेंट है, यूपीआई, वैलेट, कार्ड, पीपीआई, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो हैं सितंबर 2022 के बाद की, वो सब कवर्ड है। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, और यूनिट वाइड एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, जो भी यूनिट खत्म होगी उसका नेक्स्ट उसका एमसीक्यू वीडियो भी आ जाएगा, और जो भी रिसेंट एग्जाम चल रहे हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पोस्ट किए जाएंगे, जो भी डिजिटल बैंकिंग के अभी हाल फिलहाल एग्जाम हुए होंगे मेमोरी बेस्ड। ठीक। अब बात करते हैं व्हेन कैन वी कंप्लेन। तो अब कंप्लेन करने की बात आए तो जब भी डेफिशिएंसी सर्विस में कोई भी कमी होगी, तो जैसे रॉन्ग चार्जेस हो गया, डिडक्शन का, डिले इन पेमेंट्स है, फेल्ड यूपीआई ट्रांसफर, रिफ्यूजल टू ओपन क्लोज अकाउंट, है ना, इशू विद लोन्स, कार्ड, डिजिटल पेमेंट, इन सारे केसेस में कंप्लेन आप कर सकते हैं ऑम्बड्समैन को। अलाउड क्या नहीं है, बिजनेस कॉमर्शियल पॉलिसी डिसीजन ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसी, है ना, उसमें अगर बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है वो आप ऑम्बड्समैन में नहीं डाल सकते। आउटसोर्सिंग या वेंडर डिस्प्यूट है वो भी नहीं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कोई डिस्प्यूट है वो भी नहीं, मैटर ऑलरेडी अगर कोर्ट में है, ट्रिब्यूनल में है, या
सेटल हो चुका है वो भी नहीं डाल सकते, या एनोनिमस या ट्रिवियल कंप्लेंट्स भी नहीं डाल सकते। एनोनिमस मतलब जो भी बिना नाम के ऐसे कोई कंप्लेंट नहीं डाल सकते। अब बात आती है कंप्लेंट फाइल कैसे करना है ऑम्बुड्समैन में। तो जो भी बैंक्स, एनबीएफसी या पेमेंट ऑपरेटर हैं, उनको सबसे पहले राइट करना है, ठीक है, 30 डेज का, ठीक है, वेट करना है और उसको राइट करना है, ठीक है, फर्स्ट 30 डेज में। अगर वहां तक, फॉर एग्जाम्पल आपका आज डिस्प्यूट हुआ, 30 दिन आपके पास है, आप उनको कंप्लेंट डालो। अगर 30 दिन के अंदर वो चीज नहीं रिजॉल्व होती, या फिर रिजॉल्व होती है लेकिन आप हैप्पी नहीं उस चीज से, तो फिर आप जाके कंप्लेंट कर दो आरबीआई ओम्बुड्समैन को। साइट है cms.rbi.org.in, ठीक है, या फिर पोस्ट भी कर सकते हो सेंट्रलाइज रिसिप्ट प्रोसेसिंग सेंटर सीआरपीसी चंडीगढ़, ठीक है। टाइम लिमिट की बात करें तो 1 साल के अंदर, ठीक है, जिस दिन आपका बैंक या एनबीएफसी जहां भी आपने डिस्प्यूट फाइल किया था वहां से रिप्लाई आया और आप उस रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है, या फिर रिप्लाई नहीं आया, रिजेक्ट हो गया, जो भी है, उस दिन से लेके 1 साल के अंदर आप फाइल कर सकते हो, ठीक है। और अगर रिप्लाई नहीं आया, उस केस में 1 साल प्लस 30 डेज, ठीक है, फ्रॉम योर फर्स्ट कंप्लेन। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं अवार्ड और कॉम्पनसेशन की। तो जो अवार्ड है वो है 20 लाख तक का एक्चुअल लॉस में, और 1 लाख तक का होगा अगर हैरेसमेंट है या मेंटल एगोनी है, उस केस में 1 लाख तक का। अपील क्या है, अगर आप ओम्बुड्समैन के डिसीजन से भी हैप्पी नहीं है, तो आप जो है 30 दिन के अंदर आरबीआई एपलेट अथॉरिटी होती है उसको जाके अपील कर सकते हैं। अब कुछ चीजें जो रिमेंबर करने वाली हैं, जैसे ये सिंगल स्कीम है बैंक, एनबीएफसी और पेमेंट ऑपरेटर और सीआईसी के लिए, ठीक है। जुरिस्डिक्शन फ्री है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द रीजन, ठीक है, किसी भी रीजन के आप हो कहीं भी आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है कंप्लेंट, कोई कॉस्ट नहीं है कंप्लेंट का। और एंटिटी मस्ट डिप्ले द स्कीम एंड देयर प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर डिटेल इन ब्रांचेस, मतलब जो भी एंटिटी बैंक है, एनबीएफसी है, उसके जो भी ब्रांचेस हैं या ऑफिसेस है वहां पे, या वेबसाइट है वहां पे, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर जो भी है उनका, उसका नाम डिस्प्ले करना होगा जो भी उस कंप्लेन को देखेगा। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। कस्टमर प्रोटेक्शन लिमिटेड लायबिलिटी इन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो इसकी बात करें तो ये जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, आरआरबी है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, पेमेंट बैंक, उन सबको कवर करता है, ठीक है। ऑनलाइन मोबाइल कार्ड, नॉट प्रेजेंट पीपीआई, एटीएम, इन सबको कवर करता है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि बैंक को जो है स्ट्रॉन्ग फ्रॉड प्रिवेंशन सिस्टम जो है उसको मेंटेन रखना होगा। इसीलिए क्या है, फ्रॉड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग बना होता है ना, ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग कई जगह पे अलग डिपार्टमेंट प्रॉपरली बना होता है, ठीक है। कहीं पे भी ट्रांजेक्शन एनालाइजिंग डिपार्टमेंट है, अलग अलग नेम से बना हुआ है, ठीक है। ट्रांजेक्शन हंच नाम से है कहीं पे, ठीक है। उसी उसमें अभी जैसे म्यूल की बात करें तो म्यूल के अलग डिपार्टमेंट बना होता है, जो म्यूल अकाउंट्स होते हैं। म्यूल से रिलेटेड म्यूल डॉट हंटर एआई भी अपना आरबीआई का आया है, उसको भी बैंक अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये सारा सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग फ्रॉड की बात करें तो कस्टमर मस्ट रिपोर्ट अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन क्विकली। बैंक मस्ट ऑफर 24/7 रिपोर्टिंग एंड ब्लॉक लॉसेस, ठीक है। 24 घंटे उनको जो है बैंक को ये सर्विस प्रोवाइड करनी कि अगर कोई भी लॉस हो रहा है उसको रोकने का जो ऑप्शन है वो बैंक हमेशा प्रोवाइड करे, चाहे वो कार्ड ब्लॉक का हो, मोबाइल ऐप के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, कस्टमर केयर के थ्रू, कैसे भी। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर। अब कस्टमर की क्या क्या लाइबिलिटी है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अगर फ्रॉड जो है वो बैंक की गलती से हुआ है, बैंक की फॉल्ट से हुआ है, तो कस्टमर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, जीरो लाइबिलिटी, ठीक है। थर्ड पार्टी ब्रीच इफ रिपोर्टेड विद इन 3 वर्किंग डेज, ठीक है। तो अगर थर्ड पार्टी ब्रीच हुई है और 3 दिन के अंदर उसने रिपोर्ट कर दिया है, तो कस्टमर की कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। अगर पार्टी का भी कोई फॉल्ट नहीं है और 4 से 7 दिन के अंदर वो रिपोर्ट करता है, तो बीएसबीडीए अकाउंट में 5,000 की लाइबिलिटी है उसकी। अदर जो भी एसबी पीपीआई एमएसएमई है वहां पे 10,000 की है। हाई वैल्यू करंट अकाउंट ओडी बीसीसी में 25,000 की है, ठीक है। और अगर 7 दिन के बाद वो रिपोर्ट करता है, तो जो भी बैंक की पॉलिसी में लाइबिलिटी मेंशन है उस बैंक की पॉलिसी के हिसाब से वो मानी जाएगी, ठीक है। अब अगर कहीं पे कस्टमर का नेग्लिजेंट है, ऐसा है कि कॉल आया, पिन शेयर कर दिया, पैसा निकल गया, उस केस में क्या होगा, लॉस टिल रिपोर्टिंग इज देयर आफ्टर रिपोर्टिंग बैंक बियर्स, ठीक है। मतलब रिपोर्टिंग तक जो भी लॉस हुआ है
वो तो बैंक बियर करेगा। फॉर एग्जांपल पिन आपने बता दिया और बैंक को आप रिपोर्ट करने गए, उससे पहले तक जो भी पैसा निकला होगा वो आप बियर करेंगे। रिपोर्टिंग के बाद अगर पैसा निकलता है तो वो लॉस बैंक बियर करेगा। अब रिवर्सल और टाइमलाइन की बात करें तो जो भी रिवर्सल देना है वो 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिपोर्टिंग या वैल्यू डेट टू द ट्रांजेक्शन डेट उसमें हो जाना चाहिए। और कंप्लेन जो है वो 90 दिन के भीतर रिजॉल्व हो जानी चाहिए। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अब बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें तो बैंक जो है वो उसको एक तरह का बर्डन ही है कि उसको कस्टमर का फॉल्ट प्रूफ करना होगा कि उसने फॉल्ट किया है या उसने डिले किया है कंप्लेन में। ये भी एक बर्डन है। अब रिसेंट पॉइंट अगर 2025 की बात करें तो उसमें आरबीआई जो है उसने कुछ बैंक्स को फाइन भी किया है क्योंकि उन्होंने 24/7 रिपोर्टिंग जो उनकी उनकी जो सर्विसेज थी वो प्रोवाइड नहीं कर पाए। ठीक है, लाइबिलिटी कैप वही है जैसा बताया, 5, 10 एंड 25,000 अनचेंज्ड है सिंस 2017। गैप्स की बात करें तो 7 दिन के बाद जो भी लाइबिलिटी होगी वो जो जो बैंक है जहां पे वो फ्रॉड हुआ है या जहां से वो पैसा लॉस हुआ है उसकी जो पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। आगे मूव करते हैं, आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल। ठीक है, इसकी बात करें तो ये आया था 18 Feb 2021 में। उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो 2025 में भी कुछ एडिशन है, उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसका मेन एम था कि मिनिमम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जो है डिजिटल पेमेंट के लिए उनको रखा जाए कि भाई ये मिनिमम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड रहने चाहिए डिजिटल पेमेंट के लिए। अप्लाई होता है सारे जितने भी एनबीएफसीज हैं जो मेंशन्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं गवर्नमेंट, मतलब ये जो पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, ये कि कौन सी पॉलिसी में ये गवर्नेंस आता है। तो बोर्ड अप्रूव्ड जो भी पॉलिसी होती हैं, ठीक है, कवरिंग फंक्शनैलिटी सिक्योरिटी परफॉर्मेंस, वो इसमें इसके अंडर इसकी गवर्नेंस आती है। पीरियोडिक रिस्क असेसमेंट, ओवरसाइट, सीनियर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी। अब ऑथेंटिकेशन एंड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे होता है ना, वो सारी चीजें होनी चाहिए। मल्टी फैक्टर मतलब क्या हो गया, उसमें आपका कैप्चे भी होगा, ओटीपी भी होगा, है ना, और पासवर्ड तो होगा ही होगा। ठीक है, बायोमेट्रिक भी रहेगा, डिवाइस बाइंडिंग भी रहेगा। ठीक है, डिटेक्ट वेलोसिटी, फेल्ड लॉगिन भी डिटेक्ट करेगा वो कि भाई कितनी बार इसमें फेल्ड लॉगिन हो रहा है। उस केस में क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, या फिर कभी कभी होता है ना गलत आप पिन डालते हो, बोलता है 24 आवर के बाद फिर से ट्राई करो या 1 आवर के बाद ट्राई करो। ठीक है, ये सारी चीजें। आगे मूव करते हैं, बात करते हैं कोर सिक्योरिटी कंट्रोल की। तो इन टू एंड इंक्रिप्शन होगा, सिक्योर प्रोटोकॉल, सर्टिफिकेट रिन्यूअल, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लॉगिंग, कैपेसिटी, बैकअप प्लानिंग, ये सारी चीजें इसमें कोर सिक्योरिटी कंट्रोल में आएगी। बात करते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल, एएसएलसी। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल क्या होता है कि जो भी सिक्योरिटी लेयर्स हैं, ठीक है, उनको उनकी थ्रेड मॉडलिंग करना, कोड उनका रिव्यू करते रहना, और जो भी लेयर्स हैं सिक्योरिटी की उनमें सेपरेशन रहना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में सिक्योरिटी रहनी चाहिए। और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्ट जो है वो टाइम टाइम पे होना चाहिए, एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा बार 1 साल में होना चाहिए। और एस्क्रो ऑफ वेंडर सोर्स कोड भी होना चाहिए, सिक्योर डिजाइन डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, डिजाइन में कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं चैनल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए, कैप्चा, ब्रूट फोर्स, डस प्रिवेंशन, सिक्योर कुकीज, इनएक्टिविटी लॉग आउट, ये सारा होना चाहिए। मोबाइल ऐप में वैलिडिटी, डिवाइस का वैलिडेट करे कि कौन से डिवाइस में चल रहा है, वर्जन, इसके बाद इनक्रिप्ट डेटा, ऑब्सक्यूट कोड, ब्लॉक रूटेड, जेल ब्रोकन डिवाइस, रेगुलर अपडेट्स, ये सारी चीजें देते रहना चाहिए मोबाइल एप्स में। जैसे कि सारे बैंक्स का अपडेट्स वो लोग मोबाइल एप्स में टाइम टाइम पे देते रहते हैं। कार्ड्स की बात करें तो पीसीआई डीएसएस कंप्लायंस जो होता है उस रूल्स को वो कार्ड जो है फॉलो करने चाहिए। टोकेनाइजेशन होना चाहिए, एचएसएम होना चाहिए कीज का, और कोई भी प्लेन टेक्स्ट कार्ड डेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कार्ड डेटा जो होना चाहिए वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए। रिकंसिलेशन एंड कस्टमर प्रोटेक्शन की बात करें तो जो रिकंसिलेशन होना चाहिए वो 24 आवर्स के अंदर ही अंदर हो जाना चाहिए। और अब बात करें जो भी उससे रिलेटेड अलर्ट्स हैं, यूजर सेफ्टी टिप्स हैं, ग्रीवियंस रिड्रेस हैं, एप्स वेब पोर्टल से रिलेटेड, वो सारे होने चाहिए।
इम्प्लीमेंटेशन और ओवरसाइट की बात करें तो आरबीआई जो है वो टाइम टाइम पे क्या है, ऑडिट और इंस्पेक्शन सुपरवाइज करता रहता है, ठीक है। और जहां पे गैप्स होते हैं उनके लिए वो क्या करता है, पेनल्टीज भी लगाता है। जैसे आपने सुना होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में 1 करोड़ पेनल्टी लग गया, केवाईसी के लिए 50 लाख लग गया, ये मेजर ना फॉलो करने के लिए, तो सारा लगाता रहता है, ठीक है। वीक अगर वीएपीटी पॉइंट्स होंगे ना, वेंडर मैनेजमेंट अगर सही नहीं होगा, कस्टमर अवेयरनेस में लैप्सेस होंगे, तो इस सब में आरबीआई क्या लगाता है, पेनल्टी लगाता है। अब करंट फोकस और गैप्स की बात करें तो जो भी वेंडर ऐप कोड है, स्क्रो, वर्जन कंट्रोल, ये सारे क्या होने चाहिए, प्रॉपरली मॉनिटर्ड होने चाहिए, ठीक है। और जो भी एपीआईज हैं, ठीक है, उनको जो भी मालवेयर थ्रेड्स हैं, बॉट थ्रेड्स हैं, उन सबसे सिक्योर रखना चाहिए। और कस्टमर के बीच में अवेयरनेस भी रखनी चाहिए, तभी क्या है कि बैंक्स जो है वो अपने एडवर्टाइजमेंट में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स या ट्रेनिंग रिलेटेड टू द अवेयरनेस ऑफ फ्रॉड्स वो हाईलाइट करते रहते हैं। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स, अब बात करते हैं चैलेंजेस की डिजिटल बैंकिंग में। तो चैलेंजेस का जैसा पिछले उसमें बात हुआ कि साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। क्योंकि चूंकि इंटरनेट है, मोबाइल बैंकिंग है, यूपीआई है, वैलेट है, इन सब पे अगर अटैक हुआ तो वो बहुत बड़ा अटैक हो सकता है, यानी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। थ्रेट्स की बात करें तो उसमें आता है फिशिंग, है ना, मेल भेज दिया, मेल में फर्जी जो है लिंक भेज दिया, उस पर क्लिक कर दिया, क्लिक जाके वहां से पैसा हो गया। विशिंग हो गया, स्मिशिंग एसएमएस के थ्रू हो गया, वीडियो के थ्रू हो गया, सिम स्वैप कर दिया, फेक एप्स हो गई, उनको इंस्टॉल करवा दिया, जो है उसकी मालवेयर हो गया, क्रेडेंशियल स्टफिंग हो गया, मैन इन द मिडिल अटैक, दो कंप्यूटर के बीच में से डेटा चोरी कर दिया हैक करके, है ना। डीप फेक फ्रॉड, जैसा कि देख रहे हो एआई के टाइम पे डीप फेक फ्रॉड चल रहा है, कि जो है किसी का वो प्रोफाइल या फोटो गलत यूज करके ही जो है केवाईसी हो जा रहा है। एडवांस अटैक की बात करें तो जीरो डे वल्नरेबिलिटी हो गया, रैंसम एज अ सर्विस, है ना, कि भाई आपका हैक कर लिया, फिर वो रैंसम मांग रहा है कि हम तभी रिलीज करेंगे जब जो है इतना पैसा दे दोगे। ये सारी चीजें, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की नीड है, बिहेवियर बायोमेट्रिक होने चाहिए, फ्रॉड रिस्क एनालिटिक होनी चाहिए। रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात करें तो आरबीआई का जो डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोलर डीपीएससी, उसको कंप्लाई करना चाहिए। कस्टमर प्रोटेक्शन एंड लिमिटेड लाइबिलिटी इन यूईबीटी जो है 2017, उसको कंप्लाई करना चाहिए। डीपीडीपी एक्ट 2023 जो कि डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म से रिलेटेड है, उसको भी कंप्लाई करना चाहिए। कार्ड्स की बात करें तो पीसीआई डीएसएस नॉर्म्स को और आईएसओ स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। बेसल स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको भी कंप्लाई करना चाहिए। टाइम टाइम पे ऑडिट, सर्टिफिकेशंस एंड मैंडेटरी बीच रिपोर्टिंग, ठीक है, ये सारी चीजें टाइम टाइम पे रिपोर्टिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी रिस्क की बात करें। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को फ्रेंड्स। केवाईसी एमएल एमएसएमई से रिलेटेड अगर आपको चाहिए, आपको आईटी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और अगर आपको जेआईबी से रिलेटेड चाहिए तो उसका भी एक वीडियो पड़ा हुआ है, आगे भी आके न्यू कोर्सेज के वीडियोस आएंगे। तो फ्रेंड्स चैनल में बने रहिए। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी रिस्क। टेक्नोलॉजी रिस्क की बात करें तो टेक्नोलॉजी रिस्क क्या है फ्रेंड, जैसे कि जो भी आपका चैनल है जो आप यूज कर रहे हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, है ना, उसी में कोई ग्लिच आ जाए, है ना, वो भी एक तरह का क्या है, चैलेंज है डिजिटल बैंकिंग का। एपीआई में डिपेंडेंस हो गया, कोई फिनटेक पार्टनर है उस पर डिपेंडेंट है, पता चले वो फिनटेक पार्टनर का दिवालिया निकल गया या फिनटेक पार्टनर में कोई कमी आ गई, तो पता चले हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस है। क्लाउड क्लाउड प्लेटफॉर्म, थर्ड पार्टी रिस्क, है ना, नीड ऑफ क्वांटम रेजिस्टेंस क्रिप्टोग्राफी फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी, है ना। तो ये सारी चीजों की शैडो आईटी, वीक चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस कैन क्रिएट वर्नरेबिलिटी। अब बात करते हैं कस्टमर प्रोटेक्शन एंड अवेयरनेस। तो लो अवेयरनेस ऑफ सेफ प्रैक्टिसेस, जैसे ओटीपी, लिंक शेयरिंग, ये बहुत कॉमन हो गया है ना, वो नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। डिले इन रिपोर्टिंग अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांसफर लीड टू हायर लॉस, मतलब टाइम पे फ्रॉड हो गया, ओटीपी दे दिया, पता चला 2 दिन बाद रिपोर्ट करना, टाइम पे रिपोर्ट ही नहीं हो पा रहा, तब तक पूरा पैसा निकल गया। बैलेंस नीड बिटवीन कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी। तो कन्वीनियंस जो चाहिए कस्टमर को, जो कि हम डिजिटल बैंकिंग से प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके और उस जो चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें उनकी सिक्योरिटी, दोनों में बैलेंस होना चाहिए।
फिर टू मैनी स्टेप्स लोगे तो क्या होगा, यूजर भी इरिटेट हो जाएगा। ये भी नहीं कि एकदम ही सिक्योरिटी लगा दी कि कस्टमर ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा, वो भी दिक्कत है। नेक्स्ट है फिनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी। रूरल एरिया, सीनियर सिटीजन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी फेस डिवाइस एंड लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब बात करते हैं ऑपरेशनल एंड एचआर इश्यूज के बारे में। तो ऑपरेशनल एचआर इश्यूज की बात करें तो जो भी स्टाफ है उसको कंटिन्यूएशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए फ्रॉड प्रिवेंशन और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि जब स्टाफ ट्रेंड होगा तभी वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगा और कस्टमर को भी एजुकेट कर पाएगा। इनसाइडर नेग्लिजेंस और कोलिजन इज एट रिस्क, मतलब अगर इनसाइडर फ्रॉड ही हो गया है ना, जो स्टाफ है उसी ने फ्रॉड कर दिया, तो उन सारी चीज़ों का भी एक रिस्क है। तो उन सारी चीज़ों पे भी काम करना होगा, अवेयर करना होगा, इंटीग्रिटी पे काम करना होगा। ठीक है, फिर इंसिडेंट रिस्पांस प्लान आईआरपी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, जो कि सारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, जो कि आपका जो सिक्योरिटी पॉलिसी होता है उसी के अंडर में आता है, ये भी बहुत मस्ट है। अब बात करते हैं कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर। तो अब जैसे अगर आप सिक्योरिटी अपग्रेड्स और साइबर इंश्योरेंस ये सारी चीजें हैं, कंप्लायंस इस पे स्पेंड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर आएगा। ठीक है, मार्जिन्स जो हैं वो कम होंगे तो प्रेशर आएगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो मार्जिन्स आपको कम ही रखने होंगे। ठीक है, ट्रेड ऑफ बिटवीन इनोवेशन स्पीड एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये सारी चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी चैलेंजेस। तो अभी बात करें टेक्नोलॉजी चैलेंजेस की, तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात करें तो बैंक्स क्या है उसको यूज कर रहे हैं फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि वो 22 या फिर उस जो एआई से रिजल्ट आए वो एक्सप्लेनेबिलिटी इशू हो उसमें। ठीक है, तो ये भी एक तरह का चैलेंज है। ठीक है, ब्लॉकचेन एंड सीबीडीसी, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसको अडॉप्ट करना। ठीक है, और इंटर ऑपरेबिलिटी चैलेंजेस भी हैं। अब जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो जो करंट क्रिप्टोग्राफी है उसको भी डिसरप्ट कर सकती है। तो ये सारे क्या है, इमर्जिंग जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग है ना, ब्लॉकचेन, सेंट्रल बोर्ड डिजिटल करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें बहुत चैलेंजिंग है। बैंक को इन पे बहुत ही फोकस तरीके से काम करना पड़ेगा अगर मार्केट में बने रहना। एनवायरमेंटल एंड रिजाइलेंट एस्पेक्ट, ये भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी पार्ट का सिक्योरिटी पॉलिसी का पार्ट है। बैंक मस्ट सिक्योर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क अगेंस्ट क्लाइमेट रिलेटेड डिस्रप्शन, है ना, पावर आउटरेज हो गया, कोई जियो पॉलिटिकल रिस्क आ गया है ना, पता चले कि फ्लड आ गया या फिर कुछ ऐसा आ गया जो कि वॉर लाइक सिचुएशन भी हो सकती है, वैसा भी। आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की, है ना, जैसे कि सिक्योरिटी उसमें तो आपका आ जाएगा फिशिंग एंड ऑल जो बता दिया। कंट्रोल्स में आपका एमएफए, बिहेवियर बायोमेट्रिक्स, टोकेनाइजेशन, ये सारे आपके कंट्रोल होंगे। रेगुलेटरी कौन कौन होंगे, डीपीएससी, यूईबीटी, डीपीडी, डीपी एक्ट 2023, बेसल साइबर प्रिंसिपल जो है बेसल कमेटी का। टेक्नोलॉजी की बात करें तो एपीआई, ओपन बैंकिंग, क्लाउड सोवरेनिटी, क्वांटम रेजिस्टेंस, क्रिप्टो। ओपीएस और रिस्क की बात करें तो टेक्नोलॉजी टेक्निकल डेप्थ, टीपीआरएम, थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, है ना, आईआरपी। और पेमेंट और फिनटेक की बात करें तो यूपीआई, बीएनपीएल, सीबीडीसी, रेस्टेक, ठीक है, सुपरटेक, ये सारी चीजें। तो ये तो था आपके डिजिटल बैंकिंग चैलेंजेस के बारे में। अब बात करते हैं ई केवाईसी। ई केवाईसी आप में से बहुत लोग जानते होंगे। ठीक है, ई केवाईसी क्या है, ई केवाईसी इज नथिंग बट कि आप इलेक्ट्रॉनिकली जो केवाईसी आप फिजिकली जाके करते थे उसको इलेक्ट्रॉनिकली करना। ठीक है, तो जो मास्टर डायरेक्शन था केवाईसी का 2016 का, उसको अमेंड किया गया कि ऑनबोर्डिंग जो होगी फेस टू फेस, नॉन फेस टू फेस, वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, ये सारे उसमें डाल दिए गए। पहले ऐसा नहीं था, अब क्या है, नॉन फेस टू फेस, ये सारी चीजें भी उसमें हैं। अब जो रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं उनको कस्टमर को जैसा कि वो ऑलरेडी करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, हाई रिस्क और लो रिस्क और मीडियम रिस्क। जैसे लो रिस्क का जो आपको रिकेवाईसी करना होता है वो आपको 2 साल में करना होता है, हाई रिस्क का 8 साल में, और
सॉरी, मीडियम रिस्क 8 साल में, हाई रिस्क का 10 साल में। ठीक है, तो ये सारा पीरियोडिक केवाईसी अपडेशन होना चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करें जो अभी लेटेस्ट सर्कुलर है आरबीआई का जून 12 2025 का, तो फेस टू फेस वीसीआईपी, आधार बायोमेट्रिक, ई केवाईसी, केवाईसी अपडेशन, आधार ओटीपी, वीसीआईपी, इतनी तरीकों से आप ई केवाईसी कर सकते हैं। ठीक है, अब सेल्फ डिक्लेरेशन अलाउड फॉर नो चेंज और एड्रेस चेंज बाई ब्रांच। ठीक है, अब अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन पे भी हो जाएगा। ठीक है, सी केवाईसी आर की बात करें तो ये क्या है, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। यहाँ पे क्या है कि जो भी अकाउंट ओपन हो रहा है या री केवाईसी हो रही है तो उसका फ्रेश जो केवाईसी रिलेटेड डेटा है वो यहाँ पे जाके स्टोर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब एनपीसीआई ई केवाईसी सेतु की बात करें जो कि मार्च 25 में आया है, ये आधार बेस ई केवाईसी है। इसमें फुल आधार नंबर आपको नहीं डालना है, इसमें जो भी नंबर होगा उसमें से लास्ट 4 डिजिट छूटे हुए होंगे, बाकी सारा जो होगा वो मास्क होगा और उसमें आपका डेमोग्राफिक जो है वो इन्फो होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका एनपीसीआई ई केवाईसी सेतु। ठीक है, सेक्शन 11A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इसके बारे में, मतलब उससे रिलेटेड, मतलब उस रूल को फॉलो करते हुए ये आया है। ठीक है, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा मैंने बताया कि हाई का 2 साल है, लोग, आई थिंक आई हैव, सॉरी यार, मिस्टेकली आई हैव टोल्ड यू, लो का 2 साल, लो का एक्चुअली 10 ईयर है, क्योंकि लो रिस्क वाले को सबसे लेट में केवाईसी करना होता है। लो का 10 साल है, हाई का 2 साल है, मीडियम का 8 साल है। इतना लंबा लेक्चर हो गया कि मेरे को भी थोड़ा सा, कोई नहीं। फिर मोड ऑफ ऑनबोर्डिंग, मोड ऑफ ऑनबोर्डिंग की बात करें तो क्या होगा मोड ऑफ ऑनबोर्डिंग ई केवाईसी के लिए, एक तो होगा फेस टू फेस। ठीक है, उसमें आधार बायोमेट्रिक भी आएगा। दूसरा होगा वीडियो केवाईसी, है ना, आजकल वीडियो केवाईसी से तो अकाउंट भी खुल रहे हैं मैक्सिमम बैंक। ठीक है, फिर तीसरा है नॉन फेस टू फेस वाया आधार ओटीपी, मतलब अगर फेस टू फेस नहीं करना है आपको तो आधार ओटीपी के थ्रू भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप ई केवाईसी कर सकते हैं। अदर प्रोविजन रिपोर्टिंग एंटिटी मस्ट सेंड रिमाइंडर फॉर डी केवाईसी। तो जैसा आपने देखा होगा जो भी अकाउंट में केवाईसी पेंडिंग रहता है उसका रिमाइंडर एसएमएस आपके बैंक से आ जाता है। तो फॉर एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम आधार सेल्फ डिक्लेरेशन प्लस पॉजिटिव वेरिफिकेशन, मतलब अगर आपका जो आधार में एड्रेस है और जो आप अकाउंट में एड्रेस कराना चाहते हो वो री केवाईसी टाइम डिफरेंट है ई केवाईसी के टाइम, तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा और एक पॉजिटिव वेरिफिकेशन आपको कराना होगा कि भाई हाँ ठीक है, ये उससे रिलेटेड कोई भी एक इन्फॉर्मेशन दे दो जो ये बताए कि हाँ भाई आप इस एड्रेस पे रहते हो। आगे मूव करते हैं, ऑपरेशनल एंड कंप्लायंस की बात करें तो केवाईसी जो रिकॉर्ड है वो आपको 5 साल तक मेंटेन रखना होगा कि अकाउंट क्लोजर या ट्रांजेक्शन जब भी आपने किया उसके बाद। ठीक है, कंसेंट और प्राइवेसी मैंडेटरी है। एड्रेस मिसमैच अगर होता है तो पॉजिटिव वेरिफिकेशन नीडेड है। और ओटीपी जो है वो वैलिडिटी जो होनी चाहिए वो लगभग लगभग 30 मिनट की होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरबीआई पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, तो आरबीआई जो भी है नॉन कंप्लाई करोगे तो पेनल्टी लगेगी। ये कंप्लायंस और ऑपरेशनल पॉइंट्स है। टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक तो ई केवाईसी सेतु बताया जो आधार बेस्ड केवाईसी होगी, एनपीसीआई के थ्रू मस्ट आधार नंबर होगा। फिर एपीआई बेस्ड केवाईसी सिक्योर डिजिटल इंटीग्रेशन। फिर जियो टैगिंग या टाइम स्टैंपिंग, ठीक है, इसमें डिजिटल या वीडियो केवाईसी के थ्रू। फिर रिलेटेड स्कीम की बात करें तो एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट। फिर उसके बाद ई नैच की बात करें, है ना, ई साइन की बात करें, डिजिटल साइनिंग हो गया ये। फिर पीपीआई यानी कि आपके जो है वैलेट कार्ड्स, लो रिस्क वाई या मिनिमम ई केवाईसी। अब फ्रेंड्स ये आपका लेक्चर हो गया कंप्लीट। 2 एमसीक्यूज मैंने इसमें दिए हुए हैं, बाकी पूरे इस लेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज का एक सेपरेट वीडियो यूनिट बन के आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ फॉर्म ऑफ डिजिटल बैंकिंग, तो यहाँ पे तो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। नेक्स्ट है डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी प्राइमरली बिल्ट ऑन विच फाउंडेशन, तो साइबर सिक्योरिटी मेजर्स होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वेस्टिंग द फाइनेंशियल स्कॉलर, और आप इस वीडियो के साथ बने रहे, इस वीडियो को पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।